ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے وزراء کے ہمراہ زیر تعمیر رٹھوہ ہریام پل کا دورہ کیا۔ یہ پل 10 سال سے التوا کا شکار تھا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے پل کا دورہ کرتے ہوئے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل سے 28 کلومیٹر کا سفر 7 کلومیٹر تک رہ جائے گا۔ عوام کو سفری سہولت میسر آئے گی۔ رٹھوہ پل کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تعمیراتی کمپنی FWO نے جدید مشینری سے تیزی سے کام شروع کر رکھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے کہا ہے کہ میرپور آزاد کشمیر میں دمڑی والی سرکار کے سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کل سے شروع ہوں گی۔ 13 فروری کو عام تعطیل ہوگی۔ میرپور آزاد کشمیر میں ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض کی سربراہی میں عرس انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں SSP ضلعی اور مختلف محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ 13 فروری کو حضرت بابا پیرا شاہ غازی کے عرس کی مناسبت سے میرپور عام تعطیل کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں عرس کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے، جن میں زائرین کے لیے واک تھرو گیٹ اور نائٹ ویژن سے CCTV کیمرے نصب کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ عرس میں پاکستان اور بیرون ملک سے 1 لاکھ سے زائد زائرین کی شرکت متوقع ہے۔ امیر جماعت اسلامی سندھ کاشف سعید شیخ نے کہا ہے کہ پورا سندھ اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہے اور حکومت صورتحال پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سندھ کاشف سعید شیخ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سندھ پولیس کے مطابق سال 2024 میں کاروکاری اور قتل کے سب سے زیادہ واقعات لاڑکانہ میں ہوئے، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سندھ میں 450 کے قریب افراد اغوا ہوئے، جن کے اہل خانہ سے لاکھوں روپے تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے سندھ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف امنی اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 16 فروری کو شکارپور کے کندن ہائی پاس پر عوام دھرنا دیا جائے گا، جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سندھ میں امن بحال نہیں ہوتا۔ میرپور خاص ضلع کونسل کا اجلاس ضلع کونسل چیئرمین میر انور علی خان تالپور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے چیئرمین ضلع کونسل میر انور علی خان تالپور نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحت کے شعبے میں صوبہ سندھ آگے ہے، جس کی مثال NICVD انڈس اسپتال اور PPHI سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ اس کے باوجود صحت و تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کو ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ضلع بھر میں 70% تک ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ اینٹوں کی کمی کا بحران تھا۔ ضلع کونسل چیئرمین میر انور علی خان نے کہا ہے کہ 31 کروڑ روپے کی NIT میں سے تقریباً 19 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اجلاس میں کونسل ممبران سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں جیکب آباد کا، جہاں سندھ حکومت کی جانب سے 147ویں اور ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح کمشنر لاڑکانہ اور DIG نے کیا ہے۔ ثقافتی میلے میں سرکاری محکموں کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں اور بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد غازی اپنی اس رپورٹ میں۔ جیکب آباد کا تاریخی اور قدیمی 147واں سندھ ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا کمشنر طاہر علی سانگھی، DIG ناصر آفتاب، MNA فوکل پرسن میر رافع علی جکھرانی، رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر سوراب سرکی نے افتتاح کیا اور انہوں نے لائیو اسٹاک ایگریکلچر سمیت ثقافتی اسٹال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نواب سمیر لغاری کا کہنا تھا کہ یہ میلہ جیکب آباد کا قدیمی اور تاریخی ہے، جس سے عوام کو تفریح مہیا ہوتی ہے۔ میلہ 16 فروری تک جاری رہے گا۔
जिसमें बैलों की दौड़, घोड़ा रेस, कबड्डी, मलाखड़ा, स्टेज ड्रामा, कल्चर शो समेत स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इवेंट है, इस इवेंट में डिफरेंट हमने कल्चरल इवेंट्स रखे हैं, जिसमें कोरी कोरी है, मलाखड़ा, इस तरह के स्पोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हमने रखे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। और साथ ही साथ ये पूरा मेला आप जो देख रहे हैं, ये हमने जो सजाया है वो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के ख़वातीन के लिए, यहाँ के नौजवान के लिए रखा गया है कि ताकि वो आएँ और आके इस पूरे हफ्ते में एक सॉर्ट ऑफ एक एंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पे हासिल कर सकें। जबकि MNA फोकल पर्सन मीर आफिज जखरानी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गुलाम अब्बास जखरानी का कहना था कि तो हमारा हॉर्स एंड कैटल शो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन होगा इस बार, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और बाहर से पूरा हमारे डीसी साहब ने, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। वो हमारे अवाम के लिए सरप्राइज़ होगा, आपके मीडिया वाले भाइयों के लिए भी, आप लोग खुद भी देखेंगे इंशाल्लाह। एक तमाम अच्छा बेहतरीन शो होगा जो जिसको हम कल्चर शो कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स आएंगे, वो है लास्ट डे पे 16 तारीख को नुमाइश ग्राउंड में वो होगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ एग्जीबिशन हैं, वो आप इधर घूमेंगे आपको सब कुछ नज़र आ जाए। मुनक्किदा मेले में बच्चों की तफरीह के लिए सर्किस, मौत के कुएं, चिड़ियाघर, झूले और खरीदारी के लिए स्टॉल कायम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ जाहिद गाजी, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मेन शाहरा पर किताब का मॉडल नस्ब किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी, शहर फैसलाबाद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए PHA की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़रई यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पे किताब का एक मॉडल तैयार किया गया है और इसके साथ एक पेन भी नस्ब किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। PHA मुख्तलिफ मॉडल्स बना रहा है, इस तरह का क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि PHA जो ये इक़दामात जो हैं, ये बहुत अच्छे इक़दामात उठाए हैं, और इस चीज़ की बहुत देर से इस चीज़ की ज़रूरत थी, जो अब पूरी की गई है। और ये फैसलाबाद शहर में खूबसूरती के में इजाफे का बायस है, और मैं ये चाहता हूँ कि मज़ीद इस तरह के जो है मुख्तलिफ शाहरा पे जो मॉडल बनाने चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि PHA की जानिब से इस तरह के मॉडल तैयार करना है खुशाइंद इक़दाम है, और इनका ये भी कहना है कि जो शहरें अभी खाली पड़ी हैं उनके ऊपर भी इस तरह के मॉडल बनाए जाएं, जो कि शहर की खूबसूरती को मज़ीद इजाफा कर सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान सामी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपने नाज़रीन को बताएं कि सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर को दौरे जदीद के मुताबिक सहूलियात से रास्ता करने के लिए करोड़ों रुपए के फंड से तामीर और तरक्की का काम जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर राना जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी जावेद चौधरी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आवाम को एक बार फिर कुतुब बीनी की तरफ राग़िब करने के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में बहुत सारे नए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्डिंग का फर्नीचर तब्दील किया जा रहा है, उसमें रंगो रोगन किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर राना जावेद इकबाल, उनसे जानते हैं कि क्या क्या नए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में हुकूमत पंजाब ने 120 मिलियन की स्कीम हमें दी है, जिसमें हमने 100 साल पुरानी तारीखी लाइब्रेरी की इमारत को रेनोवेट करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे अपग्रेडेशन का मामला जो है वो सेटल करना है, जिसमें कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल और इसके सर्विसेज और इसके ऑपरेशंस को हमने असर हाज़िर के जदीद काज़ों के से हम आहंग करना है। यहाँ पे नया फर्नीचर हमने रीडर्स के लिए लेके आना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क़ारीन हैं, जो रीडर्स हैं, वो लाइब्रेरी की तरफ राग़िब हो सके। लाइब्रेरी की आउटर साइड को भी हम लोग ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बेहतर करने का तहिया किए हुए हैं,
ताकि इस लाइब्रेरी को एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर के तौर पे हम कायम कर सकें। जी, लाइब्रेरी को कम्युनिटी लर्निंग सेंटर के मुताबिक हम आहंग करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कुतुब बीनी के शायकीन के लिए ये बहुत खुशखबरी है। जी, कसूर पीका एक्ट 2025 के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर 3 रोज़ा भूख हड़ताल कैंप बाईपास चौक पर लगा दिया गया है। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट को नामंजूर किया है। सज्जाद अंसारी इस वक्त भूख हड़ताल कैंप में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस कैंप के हवाले से। जी शुक्रिया। पीका एक्ट 2025 के खिलाफ PFUJ की जानब से 3 रोज़ा जो भूख हड़ताली कैंप है वो पाकिस्तान भर में जो सहाफ़ियों की तरफ से लगा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर बाईपास पर। यहाँ पर सहाफ़ियों की तरफ से जो ना भूख हड़ताली कैंप जो ना इस पर लगाया जा रहा है और सहाफ़ी जो है ना इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है जो पीका एक्ट जो कानून है ये काला कानून है, सहाफ़ियों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सहाफ़ी तो पहले ही हक़ाइक़ पर मबनी जो ना खबरें शाये करते हैं, लेकिन फिर ये पीका एक्ट कवानीन बनाने की असल ज़रूरत क्या थी। हमारे साथ इस पर मौजूद है कसूर सीनियर सहाफ़ी, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? देखें, आज का ये जो भूख हड़ताली कैंप है ये 3 दिन के लिए लगाया गया है। 12 से 14 फरवरी तक जो है वो पाकिस्तान भर के जो सहाफ़ी हैं वो भूख हड़ताल करेंगे और इंतज़ामिया को और पाकिस्तान के जो हमारे अशरफिया हैं, जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत है, उनसे सिर्फ एक ही एजेंडा और एक ही पॉइंट है कि पीका एक्ट जो काला कानून है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए या उसमें तरमीम करके ये जो सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश हो रही है उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाता सहाफ़ी बरादरी जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। PFUJ की अपील पर अफजल भट्ट साहब हमारे सदर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अरशद अंसारी साहब, उन्होंने हुक्म किया था कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल की जाए और भूख हड़ताल के बाद अगला जो लाया अमल होगा वो जो बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, कसूर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी भरपूर एहतजाज का हिस्सा है। जी जैसे आपने बात सुनी है सीनियर सहाफ़ी की, उनका यही कहना है कि PFUJ की जानब से जो है ना एहतजाज की कॉल दी गई थी। 3 रोज़ा जो एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप है वो इस वक्त लगा दिया गया है और उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि जो पीका एक्ट जो कानून है इसमें तरमीम की जाए या इसको ख़त्म किया जाए। जी सरगोदा में नकासी और फराहमी आब का अबतर निज़ाम वबाल जान बन चुका है और शहर में सड़कों पर मौजूद सेवरेज के बदबूदार पानी के सबब लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जबकि ज़िम्मेदारान इस हवाले से हकीकी किरदार अदा करने से कासिर दिखाई देते हैं। इस हवाले से ये मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवीस से। जी अशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सरगोदा में नक्कासी और फराहमी आब के तबाह हाल निज़ाम की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड पर। स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड पर वाक़या इस सड़क के साथ ही मलिका यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 भी वाक़या है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसके अलावा स्पोर्ट्स अकेडमीज़ मौजूद हैं और फूड स्ट्रीट भी है। यहाँ उबलते गटर मुकामी इंतज़ामिया की नाकस हिकमत अमली को अयां कर रहे हैं। सीवरेज का जो बदबूदार ताफुन ज़दा पानी है वो सड़क पर मौजूद है। आमदोरफ्त के हवाले से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस यूनिवर्सिटी तलबा को भी सख्त कोफ्त और अजियत का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासर होता है और लोग अहले इलाका शदीद कर्ब से दो चार हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस सड़क के हवाले से कंटोनमेंट हकाम और कॉरपोरेशन ज़िम्मेदारान के दरमियान मौजूद फ़र्क वाज़े नहीं हो सकता कि दोनों इदारे ही एक दूसरे के पे ज़िम्मेदारी डालकर फ़राइज़ से सरफ़ नज़र करते हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है और उनका कहना है कि इस मसले का फ़ौरी तदारक यकीनी बनाया जाए। जी, टिम्बर माफिया ने शहर खामोशा को भी ना छोड़ा। दरख्तों की चोरी और कटाई के दौरान कब्रें मिस्मार करके कब्रों की बेहुरमती की गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुफीजुर रहमान से। जी मुफीजुर रहमान, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक अमल के हवाले से। इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे टिम्बर माफिया ने कब्रिस्तान के अंदर लगाए गए बहुत तनावर दरख्त जो है वो काटे हैं, जिससे कब्रें मिस्मार हुई हैं, जिनकी बेहरमती हुई है। यहाँ पे जो जिनके लवाहिकीन बुरसा हमारे साथ मौजूद हैं, जो सरापा एहतजाज हैं, जिनकी कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं, वो शदीद सरापा एहतजाज है। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ एक टिम्बर माफिया जो भी है कब्ज़ा माफिया ग्रुप ने बड़ी बेदर्दी से सब दरख्त काट दिए हैं कब्रिस्तान के और कब्रों की बेहुरमती भी की गई है। कई कब्रें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। हमारी इंतज़ामिया से DCO साहब से DSP साहब से रिक्वेस्ट है मोज़बाना की मेहरबानी करें, जिसने भी ये की हरकत उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम दायरा कार वसी करेंगे एहतजाज का, भूख हड़ताल भी करेंगे। रात को हमने दरख्वास्त भी दी SHO, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर ना। जी बिल्कुल, शहरियों का यहाँ के इलाका मकीनों का सरापा एहतजाज करना बनता है और उनका ये भी कहना है कि अगर इसके टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाकर हम भूख हड़ताल की तरफ भी जाएंगे। इनका एक ही मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, DSP अहमदपुर शर्किया और थाना सिटी अहमदपुर शर्किया से कि इन टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, वरना हम भूख हड़ताल की तरफ चले जाएंगे। दादू में जंगल का कानून बाअसर अफराद ने अदालती गेट के सामने अपनी अदालत कायम कर दी। सेशन गेट के सामने बाअसर अफराद ग्रुप की सूरत में पहुंच गए। पुलिस ने मुमकिना झगड़े के पेश नज़र 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए अल्लाह बख्श जाए वकवा से आगाह कर रहे हैं। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त दादू सेशन कोर्ट के कोर्ट कम्प्लेक्स के सामने मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि दादू में जो है बाअसर जो है वो कानून से बालातर हो गए हैं। 2 बाअसर अफराद है जो सरेआम जो अदालती अहाते के गेट के सामने जो है पुलिस को जो है गालियाँ देकर गए हैं। पुलिस ने जो है उनकी गिरफ्तारी करने के बाद जो उनको दोबारा छोड़ दिया है। ये आप मेरे अक़ब में पुलिस एहलकार भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस एहलकार बैठे हैं, लेकिन जो है जो बाअसर है वो उनको जो है रिहा कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये दादू का सेशन कोर्ट का ये अहाता है, जहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आए रोज़ जो है ये झगड़े होना जो मामूल है। दादू के शहरी हलकों ने यही मुतालबा किया है कि जो ये जो सेशन कोर्ट के सामने जो मसला हुआ है उन मुल्ज़मान की जो गिरफ्तारी की जाए। इस सिलसिले में वुमन प्रोटेक्शन सेल के अफसर है मोहतरमा जो है बेनज़ीर, उससे मैंने रब्ता किया है कि ये किस वजह से जो मामला पेश आया है, लेकिन उनका यही कहना है कि ये जो मामला हुआ है इससे जो है SSP का ये हमें मना किया गया है कि इससे मुताल्लिक़ हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने जो है बाअसर अफराद को जो है गिरफ्तार करने के बाद जो है वो रिहा कर दिया है। ताहम अभी जो है यहाँ पर जो है कशीदगी जो है बढ़ने के इम्कानात है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का ये मेन सड़क जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाअसर है जो पुलिस से बालातर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे। बहावलपुर में जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। आज रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगी। गाड़ियों पर टैगिंग और ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस मेडिकल चेकअप होगा। बहावलपुर में जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट का 13 फरवरी को क्वालिफाई राउंड होगा। 14 फरवरी को प्रेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की पहली रेस होगी। 15 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों की रेस होगी। 16 फरवरी को प्रिपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा। जीप रैली का ट्रैक मजमूई तौर पर 452 किलोमीटर तक रखा गया है। जीप रैली में ट्रक रेस, डर्ट बाइक रेस और कल्चरल फेस्टिवल को भी शामिल किया गया है। महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स सिंध की जानिब से दादू में खेल सबके लिए के नाम से सिंध पिंक गेम्स इनेकाद किया गया और इस पीर इलाही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दादू में गेम्स के पहले रोज़ तालिबात ने बैडमिंटन में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में जानते हैं। अफेयर सिंध की जानिब से गर्ल्स तालिबात की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सिंध पिंक गेम्स में खेल सब के लिए के उन्वान से दादू में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स की गर्ल्स ने बैडमिंटन खेल में हिस्सा लिया। गर्ल्स के लिए ऐसे मौके आते ही नहीं है। ये पहली दफ़ा जिमखाना में भी एक दफ़ा हुआ था और ये पहली दफ़ा हो रहा है। वैसे तो लड़कों के लिए ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स के लिए तो कोई मौका होता ही नहीं है। अब हो रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। मेहमानों खुसूसी ने भी गर्ल्स के दरमियान खेल की सरगर्मियों को खुश आइन करार दिया है। जो खेल हैं या गेम्स हैं ये ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जितने खेल के मैदान होंगे और जितने खेल होंगे, रिसर्च भी यही कहती है कि उतने हॉस्पिटल्स आपके मुल्क में कम होंगे। ये खेल कूद जो है न, ये सेहत बख्श एक हॉबी है, और ये जो स्पोर्ट्स है इसमें अभी बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चियां खेल रही हैं बैडमिंटन, और इसमें एक सेहत के हवाले से भी अच्छी है, और इनके जो दिमाग है वो भी खुल जाएगा। बैडमिंटन खेल के मौके पर मेहमानों खुसूसी को सिंध की सकाफत रख और अवार्ड से नवाज कर बैडमिंटन में फाइनल की गर्ल्स चैंपियन को ट्रॉफी भी दी गई। अलाबश खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। खैरपुर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत आर्टिस्ट हुसैन तबस्सुम अपनी मुनफरिद फनकारी से सबको हैरान कर दिया। गंदम के तिनको, दाल और चावल के दानों से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर अहम शख्सियात के दिलकश पोर्ट्रेट तख्लीक करते हैं। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। इमारतों, स्कूलों, घरों और कमरों की ज़िबाइश और दिलकशी बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया खूबसूरत पोर्ट्रेट और फ़न पारे हैं। आर्ट न सिर्फ जमालियाती हुस्न को निखारता है बल्कि कदीम तहजीबों और फ़नून को समझने का एक मौसर और बामानी वसीला भी है। अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत आर्टिस्ट हुसैन तबस्सुम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सारीदी समेत दीगर अहम शख्सियात के इंतहाई खूबसूरत और हकीकत से करीब तार पोर्ट्रेट तख्लीक किए, जो इनकी गैर मामूली महारत और फनकाराना सलाहियतों का मज़र हैं। हाथों की कमाल महारत रखने वाले आर्टिस्ट का कहना है कि अक्सर लोग अपने प्यारों की तस्वीर बतौर तोहफा पेश करने के लिए बनवाते हैं। इनके मुताबिक आर्ट ना सिर्फ हुस्न व जमाल का इजहार है बल्कि ये इंसान के ख्यालात, अकीदत और नज़रियात की अक्कासी का भी बेहतरीन ज़रिया है। जो मेरा फ़न का शौक़ है ये बचपन से है, बहुत सी मेहनत है। तस्वीर पे ख़र्चा भी होता है, 5 से 6 हज़ार एक तस्वीर पे ख़र्चा होता है, और ये एक बहुत मुनफरद आर्ट है जो हमारे मुल्क में बहुत कम होता है। अपना शौक़ है, लगन है, और मैं अपनी मेहनत से ऐसे पोर्ट्रेट बनाता हूँ और लोग बहुत पसंद करते हैं। सिंध हुकूमत के तावन से आर्टिस्ट हुसैन तबस्सुम के शाहकार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।